Hello everyone. So we were discussing the IUPB questions. We have discussed till question number 9 in the previous video. So see basically you must have to observe the what pattern we are seeing the questions, how we are approaching the question. It is necessary. The seeing the solutions of the question is not only the good way to approach any competitive paper. So see how to approach from our fundamental knowledge. Okay. Now let's start. So first question number 10. A group of hen was observed for 300 minutes. So basically 5 hours. And the aggressive pecking behavior was recorded. The number indicate the frequency with which the hen in the row pecks the hen in the column. Basically see what. First you have also think to know is the meaning of a particular word. Here pecking means चोंच मारना. A one hen is clicking on the peak of other hen. Okay. So more will be the pecking, more will the aggressive behavior of the that hen. So basically it is a easy question, you can see from the options. Also the most pecking is in of the row 2 keyword. Okay, if you add up and then you will see then the second order pecking is of row 3 r, and it means q, then r, then s, then p, then option c. So there is no much concept in this. Okay. Now, question number 11. Yeah, this is a bit good question, but see, seeing this question is too long, and if you think that question is hard, then you will give more time. But see, this question is of very easy level. See how. In order to study the digestive activity, samples from different parts of gastrointestinal tract were placed on the agar containing crab shell powder. Here, if you know crab, from only that you can derive the direct answer from it. Okay, then given the clearance zones number 1, 2, 3, and 4 indicate the effect of liquid from the stomach, duodenum, ileum, colon respectively of an animal x. Distilled water was added to position 5 and 6 as control. Basically see, एक अगर का प्लेट लिया हुआ है, पेट्री डिश, ठीक है, उसमें क्या हुआ, अगर का सोल्यूशन दे दिया हुआ है और उसमें क्या किया हुआ है, क्रैब सेल पाउडर मिक्स किया हुआ है. अब देखिए मेन यही बात है, और हमको बताना है कि जो यक्स एनिमल है जिसका हम लोग ये पार्ट लिए हैं, जिसका क्लियरेंस जोन हमको देख रहे हैं, जिस एनिमल से वो पार्ट लिया गया है, वह कौन सा एनिमल है. अब देखिए क्रैब क्या होता है, क्रैब आर्थ्रोपोडा का मेंबर है. ओके, सो क्रैब बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, and one of the most important feature of arthropoda is they have a thick cuticles. Okay, they have a hardcore covering over them. Okay, so it makes the arthropoda most diversified and more largest phylum. So basically from that you can derive that it is an insectivorous. Let's see how. There was a crab shell powder and it was cleared. See in which part? First part stomach and duodenum. See how. Any hard coat or material is hydrolyzed in the presence of acid so that it can be easily digested. So stomach is the most suitable acidic medium for digestion of the such products, and as it is given a crab shell powder and it is digested in stomach, it means the main digestion was occurred in the stomach and little after left was done in duodenum. And as it is crab shell powder, it means there was must be a crab is also an insect, then that animal must belong to the insectivorous. There is no need of seeing all the more detailed views. You can approach from the most easy way. Okay, there are also an important discussions. You can also read the different digestive system of ruminant animal, non-ruminant animal, hand gut fermenter. These are important topics. I have covered these animals topic in digestive system of different animals. I think in IOPB part 2 questions was there. I have covered that, so you can watch that. But see, this topic is important. What topic? Ruminant animals, non-ruminant animals, hand gut fermenter. You must once see this topic, an overview to that topics, ruminant, non-ruminant, and hindgut fermenter topic from the Campbell Biology. See, there is no necessity to buy the Campbell Biology. You can download it from download its PDF. Okay. Now come to question number 12.
In 1914, MC Collin and his co-worker showed a factor isolated from butter X. So butter fat was non-saponifiable. Basically, non-saponifiable means we cannot form the sapon or you can say सोपी उसका हम सोप सोल्यूशन नहीं बना पाएंगे तो नॉन सोपनेबल है, ठीक है, सिंपल मीनिंग है, कोई तरह नहीं. व्हेन एडेड टू डाइट could cure zeropharylthemia. Basically, see, some topics are you can say with only rote learning. See, you have to learn the vitamin deficiency. It's basic. We start learning vitamin deficiency, vitamin A deficiency, vitamin B deficiencies from class 6 or 4th, I think I understand. So you must have learned that. See, if you know zeropharylthemia is a vitamin A deficiency, in what happened in this is ड्राइनेस ऑफ आईज काज एंड कॉर्निया सूख जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, कंजक्टिवनेस हो जाता है आई पे, ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी जिसको कहते हैं जीरोपैल्थेमिया, ठीक है. तो क्या बोल रहा है कि जो बटर फैट एक्स लिखा गया था वो नॉन सेपनोफेबल था, यानी वो सॉप नहीं बना पा रहा था. व्हेन एडेड टू डाइट वो क्या कर रहा था, जीरोपैल्थेमिया को क्योर कर दे रहा था यंग रेट में, ठीक. उसके बाद और वो बोन डिफॉर्मिटीज़ को भी सही कर दे रहा था. देखिए दो बात है, जो बटर फैट है वह दो काम कर रहा है, एक जीरोपैल्थेमिया को सही कर रहा है, एक बोन डिफॉर्मिटी. अब आपको मालूम होगा कि बोन डिफॉर्मिटीज किस विटामिन की ज़्यादा नीड है, तो बेसिक है विटामिन डी की, ठीक है. उसके बाद दिस कंडीशन कुड नॉट बी क्योर्ड बाई ईस्ट सस्पेंशन. भाई जिस विटामिन की डिफिशियंसी है वह उसी अगर वही विटामिन देंगे, देखिए काफ़ी स्पेसिफिक होता है, जिस विटामिन की आपकी डिफिशियंसी है अगर वही विटामिन देंगे तभी वो क्योर होगा. अगर कोई और विटामिन खूब ज़्यादा एविडेंट अमाउंट में दे देंगे तभी भी वो सही नहीं हो सकता, ठीक है. वही बात है, ईस्ट सस्पेंशन से वो नहीं क्योर हो रहा है, ना ही ऑरेंज जूस से क्योर हो रहा है. आल्सो बाई हीटेड बटर. देखिए हीटेड बटर से भी नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा, देखिए जो सेपनोफेबल और नॉन सेपनोफेबल इनका एक केमिकल फीचर होता है, ठीक है. क्या होता है कि जब हीट करते हैं तो उनका डीनेचुरेशन हो जाता है उन प्रोटीन का. तो बेसिकली अगर प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो देखिए जो भी इंजाइम होंगे, विटामिन क्या फंक्शन करते हैं, बेसिकली विटामिन फंक्शन करते हैं एज अ कोएंजाइम. विटामिन फंक्शन कैसे करते हैं, एज अ कोएंजाइम. अगर डीनेचुरेशन हो गया उनके कन्फर्मेशनल चेंजिंग आ जाएगी. अगर कन्फर्मेशनल चेंजिंग आ गया, उनमें डीनेचुरेशन हो गया, उनके शेप में परिवर्तन आ गया, तो क्या वो कोएंजाइम की तरह एक्ट कर पाएंगे, नहीं, यानी वो कोएंजाइम की तरह एक्ट नहीं कर पाएंगे और वो किसी रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाएंगे, बेसिकली उनका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है. तो हीटेड बटर फैट जो होगा बेसिकली वह सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होगा लेकिन वो डीनेचुरेटेड प्रोटीन होगा, और अगर डीनेचुरेटेड है तो उससे क्या होगा कि वह काम नहीं कर पाएगा, ठीक. उसके बाद देखिए हमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताएं, आप पढ़ लीजिएगा, कोएंजाइम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए बताएं, ठीक. द लाइकली फैक्टर्स प्रेजेंट इन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली. अब हमको बताना है कि एक्स वाई जेड क्या है. क्वेश्चन काफ़ी आसान है. देखिए इसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है, ये आप भी जान रहे हैं. क्या हमको याद करने की मेन ज़रूरत है, इसमें रोट लर्निंग है बेसिक, कि विटामिन की डिफिशियंसी क्या है, और ये अधिकतम लोग को याद ही रहता है, कॉमन है, ठीक. उसके बाद तो क्या हो जाएगा, देखिए बोन डिफॉर्मिटीज़ भी है, जीरोपैल्थेमिया भी है, तो विटामिन ए और डी एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. उसके बाद आगे भी देख लीजिए, बी और सी, ठीक. ईस्ट का सब्सटेंशन होता है वो विटामिन बी से मिलता है, और जो ऑरेंज जूस है वो तो विटामिन सी का मेन सोर्स है ही. देखिए और कुछ भले ना मालूम हो लेकिन आपको ये जरूर मालूम होगा कि ऑरेंज जूस जो है वो विटामिन सी का मेन सोर्स है, एक ही ऑप्शन में विटामिन सी का मेन सोर्स दिखा रहा है, ठीक है. तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक. ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको आने चाहिए, अगर इसमें आप गलती कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा. जो देखिए जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं अगर आप उनको गलती कर रहे हैं तो आप क्या होता है कंपटीशन में रहते हैं, ठीक है, आप पीछे नहीं होते हैं कंपटीशन में. लेकिन आप अगर इजी क्वेश्चन को भी गलत कर दे रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, आप कंपटीशन से बाहर ही चले जाते हैं. भले आप हार्ड क्वेश्चन को सही कर दें लेकिन अगर इजी क्वेश्चन को गलत करें तो आप कंपटीशन से बाहर चले जाते हैं, ठीक है. तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपेरिजन ऑफ सर्टेन सेल स्ट्रक्चर इन 3 टाइप्स ऑफ सेल पी क्यू आर टेबुलेटेड बिलो. और उसके बाद हमको बताना है कि वो ऑप्शन दिया हुआ है आगे कि जो आपके डिफरेंट सेल हैं वो कौन कौन से सेल हैं, ठीक है, तो हमको ऑप्शन में दिया हुआ है. तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से उनका फीचर दिया हुआ है, सिंपल फीचर दिए हुए हैं. सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक.
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये तो आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और सब सेल के बारे में पढ़े ही हैं डिफरेंट आपके क्या कहते हैं 5 किंगडम में, ठीक है। तो क्या होता है, सेल वाल एब्सेंट है, लेकिन वो सेल क्या है, यूकैरियोटिक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वाल एब्सेंट होता है, और एक याद कीजिए एक और यूकैरियोटिक सेल होता है, एक और क्या कहते हैं किंगडम होता है जिसमें आपका विटेकर क्लासिफिकेशन में, जिसमें आपका सेल वाल एब्सेंट होता है लेकिन वो यूकैरियोट होता है। वो कौन सा होता है, प्रोटिस्टा होता है, ठीक है। ये दो फैमिली है, ये पहला ऑप्शन ये हो सकता है पी, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, क्यू क्या है, सेल वाल प्रेजेंट है, एब्सेंट एब्सेंट एब्सेंट, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्यू तो प्रोकैरियोट ही होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तीसरा आर क्या है, सब कुछ प्रेजेंट है, यानी सेल वाल भी प्रेजेंट है, तो बेसिकली क्या होगा, प्लांट सेल ही होगा। अब इसमें बस सिंपल मैच करना था, ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, तो ठीक है आगे देख लेते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए देखिए आपका सी क्या था, प्लांट सेल था, बी प्रोकैरियोटिक था, और ए जो था वो प्रोटिस्टा भी हो सकता था और एनिमल सेल भी हो सकता था, ठीक है। अमीबा यहाँ पे, अमीबा में सेल वाल पाया नहीं जाता, चीज होगा नहीं, ठीक है। यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ओवर सेवरल जनरेशन ड्रोसोफिला flies are attracted to a lower light intensities than higher light intensities. Duck eggs are of intermediate weight and have highest hatching success. देखिए जो स्टेबलाइजिंग फीचर होते हैं, जैसे आप हार्डिंग विनेगर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 तरह के सिलेक्शंस होते हैं, या प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। वो आप रिफर कर लीजिएगा किसी बुक में, आप टॉपिक अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है, मान लीजिए चलिए बता दें, एक होता है कि इंटरमीडिएट सेलेक्ट हो रहा है। इंटरमीडिएट जो फीचर है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक, देखिए हम लोग इंडिया में क्या होता है, ना ही ज़्यादा गोले लोग होते हैं, ना ही ज़्यादा काले लोग होते हैं, ठीक है। तो एक बीच का हम लोग का जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रेट है उसका सिलेक्शन का, ठीक है, कलर साइज का। सेम उसी तरह सभी फीचर में होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन का इवोल्यूशन में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ड्रोसोफिलास आर अट्रैक्टेड टू लोअर लाइट इंटेंसिटी देन हायर लाइट, यानी एक किसी बीच के इंटरमीडिएट वैल्यू को ना सेलेक्ट करके एक किसी और जा रहा है, यानी किसी की और, जैसे लो इंटेंसिटी लाइट की ओर टिल्ट हो जा रहा है, या पॉपुलेशन एक लो इंटेंसिटी को जो है पॉपुलेशन वो ज़्यादा प्रिफरेबल हो रही है, यानी एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो जाता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर यही अगर बीच का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, दो देखिए 3 हो सकता है, या तो आप किसी बीच के इंटरमीडिएट स्टेज का सिलेक्शन हो, या तो किसी दो किनारे के पीक के जो हैं उनमें का सिलेक्शन हो, ठीक, यही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सेकेंड जो डक्स एक्स है उसमें इंटरमीडिएट साइज सेलेक्ट हो रहा है, ठीक। अगर इंटरमीडिएट साइज सेलेक्ट हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक। क्योंकि वो स्टेबल बना रहा है कम्युनिटी को, ना ही ज़्यादा डार्क ना ही ज़्यादा हाई वेटेड एक हो रहा है सक्सेसफुल, ना ही ज़्यादा लो वेटेड, ठीक। तो ये स्टेबलाइज अधिकतम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ही होते हैं, ठीक। डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है कि बीच दोनों यानी दो मेजर दोनों पीक जो हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और इंटरमीडिएट वाले सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दोनों पीक की सिलेक्शन हो जाती है डिस्ट्रप्टिव में, ठीक है। इसको भी आप ये तो काफ़ी बेसिक है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, डायरेक्शनल हो जाएगा और स्टेबलाइजिंग हो जाएगा, ठीक, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपका बेसिक फार्मूला बेस्ड है, लेकिन फार्मूला का भी आपको कॉन्सेप्ट पकड़ सकते हैं आसानी से। अगर किसी भी सेल में बेसिक आप एक फार्मूला जरूर पढ़े होंगे, वाटर पोटेंशियल जो होता है, यस, वाटर पोटेंशियल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी भी सेल के अंदर कितना वाटर आएगा उसको जो रेगुलेट करता है, दो फैक्टर रेगुलेट करते हैं, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, ठीक। और उस पर आप प्रेशर तो नहीं आपको अप्लाई किए हैं, अगर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ठीक है, तो जितना भी होगा उस पूरा इंक्लूजन हो जाएगा आपका सॉल्यूट पोटेंशियल का। लेकिन अगर उसमें प्रेशर इंक्लूडेड है, अगर उस सेल के ऊपर हम प्रेशर लगा दिए, बेसिक बात है, जैसे देखिए कोई सेल है, ठीक है, मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, उस पर आप अगर सिंपल समझाने दीजिए, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इधर आप प्रेशर लगा दिए, ठीक है, इधर आप प्रेशर लगा दे रहे हैं, और इधर आपका सॉल्यूट पार्टिकल है, पानी इधर से इधर फ्लो करेगा क्योंकि इधर इसको कॉन्सेंट्रेशन लो करना है। अगर ये प्रेशर हम नहीं हटाते तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ्लो करता,
लेकिन अगर आप प्रेशर लगा दिए कम पानी फ्लो करेगा। यानी वाटर पोटेंशियल वो डिटरमाइंड हो रहा है दो फैक्टर से, सॉल्यूट पोटेंशियल इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, और दूसरा उसके ऊपर प्रेशर नहीं है या प्रेशर है तो कितना है, ठीक है। यानी तीन फैक्टर डिफाइन करते हैं और ये फार्मूला जनरेट होता है, ठीक। तो ये बेसिक है, फार्मूला पे रखना है। तो हमको क्या दिया, सॉल्यूट पोटेंशियल दिया -2K, ठीक। और आपका वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है आपका -1.6K, ठीक। अभी यूनिट देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमको साइपी निकालना है, प्रेशर पोटेंशियल निकालना है। तो ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, +0.4K हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका +400 भी हो जाएगा, 15 का भी। बेसिक है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट है सिंपल, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ ट्री बर्ड्स पैरासाइट द बायोमास पिरामिड विल टेक द शेप ऑफ। सिंपल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में काफ़ी आसानी से दिया हुआ है, आसान टॉपिक भी है। बायोमास का मतलब क्या होता है, नंबर। देखिए 3 तरह के पिरामिड हो जाते हैं, एक आपका पिरामिड ऑफ नंबर हो जाता है, ठीक। उसके बाद बायोमास का पिरामिड हो जाता है, उसके बाद एक इनर्जी का पिरामिड होता है, ठीक। तो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, जैसे उनसे बार बार क्वेश्चन आते ही है। जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम क्या होता है, पॉन्ड का इकोसिस्टम हुआ, उसका बायोमास का पिरामिड क्या हुआ, उसका नंबर ऑफ का पिरामिड क्या हुआ, ये सब हल्का फुल्का आप देखेंगे तो आपको उसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, तो आप आसानी से पता कर लेंगे। इसमें देखिए क्या है, ट्री है, बर्ड है, पैरासाइट है। अगर हमसे क्या पूछा होता, नंबर का पूछा होता, तब क्या आपका पिरामिड होता, ध्यान से देखिए। ट्री कितना होता है, एक होता है। बर्ड्स मैक्सिमम कितनी होंगी, 3 से मान लीजिए 4 बर्ड होंगे। और पैरासाइट कितने होंगे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर हमसे पिरामिड ऑफ नंबर पूछा होता तो ये हमारा ये डी ऑप्शन होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोस मास किसका सबसे ज़्यादा होगा, ध्यान देखिए। एक बरगद का पेड़ ले लीजिए, बनियान ट्री, ठीक। उसका देखिए साइज कितना बड़ा होता है, ह्यूज होता है। सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा, ट्री का होगा, ठीक। अगर 5-6 बर्ड भी हैं तो उनका बायोमास किसी भी हाल में आपका ट्री से आगे नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा बायोमास किसका है, ट्री का है, ठीक। चलिए पहले ट्री का ही देख लेते हैं, डायरेक्ट हम डिपिक्शन नहीं करें, ठीक। उसके बाद देखिए अब बर्ड और पैरासाइट में आप बताइए किसका बायोमास ज़्यादा हुआ, सिंपल बात है, बर्ड का बायोमास ज़्यादा, नंबर नहीं ज़्यादा है, लेकिन उसका बायोमास बर्ड का पैरासाइट कितना भी उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, ये तो कॉमन फैक्टर है, ठीक। तो उसके बाद किसका होगा, बर्ड का होगा। उसके बाद किसका होगा, आपका पैरासाइट का। तो बायोमास का पिरामिड क्या होगा, सी होगा। अगर वही नंबर का पूछा होता तो डी होता, लेकिन नंबर का पूछा नहीं है, किसका पूछा है हमको, बायोमास का पूछा है, ठीक है। तो पूरा ऑप्शन पूरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए। जैसे कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जैसे हम लोग देखें, जैसे जैसे एनसीईआरटी में काफ़ी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री बर्ड्स पैरासाइट, तो वो पढ़े रहते हैं तो नंबर का सोचते हैं और तुरंत ऑप्शन लगा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, बायोमास का दिया हुआ है, ठीक। अगला देखते हैं, हाँ ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है काफ़ी, देखिए। इनहेरिटेंस ऑफ अ डिजीज ट्रेट ऑब्जर्व इन अ फैमिली रिप्रेजेंटेड बिलो, इट मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स। हमको पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, आप लोग बेसिक बात है पढ़े होंगे पेडिग्री एनालिसिस। नहीं पढ़े हैं तो देखिए पेडिग्री एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेडिग्री एनालिसिस इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे देखिए कुछ टॉपिक्स जो हम आपको पहले ही बता दिए, हिंडगट, फोरगट, वो फर्मेंटर वाले, और पेडिग्री एनालिसिस जो जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेडिग्री तो एक बार एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको अब बताना है कि कौन सा होगा। अब अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इनमें आपको दो ऑप्शन सही लगेंगे, एक ऑटोसोमल डोमिनेंस, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, दोनों ऑप्शन सही हैं देखिए। लेकिन हमसे पूछा है मोस्ट लाइकली यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंस है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो आपका अफेक्टेड जीन है वो ट्रांसफ़र कर जाए प्रोजेनी में। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर देखिए कि जो हमेशा एक पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है कि जो मदर है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो मदर से ही होता है, मदर सेल से ही। तो देखिए इसमें भी अगर मदर इफेक्टेड है तो सभी प्रोजनी इफेक्टेड है, इसमें अगर मदर इफेक्टेड है तो इसमें भी सारे प्रोजनी इफेक्टेड है, ठीक। तो इस बात को ज़्यादा अहमियत देगी। देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंस भी है, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या हो जा रहा है कि जिसमें देखिए एक कॉमन फीचर हम नोटिस कर रहे हैं इस पेडिग्री एनालिसिस में कि मदर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज़्यादा हो रहा है, अगर मदर इफेक्टेड है तो सभी प्रोजनी इफेक्टेड हो जा रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। ऐसा बहुत क्वेश्चन पाएंगे इसमें जिसमें आपको मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करने रहते हैं, ये नहीं कि सही कौन सा है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं,
द ड्रग cytocyasin B blocks the function of actin. Which of the following cell cycle will be disrupted by cycloblastin B? पहली बात देखिए, एक कन्फ्यूजन पहली बात आप सेल चैप्टर में पढ़े होंगे अगर, ठीक, तो उसमें ये दिया होगा कि जो स्पिंडल फाइबर, पहले ध्यान दीजिएगा कि स्पिंडल फाइबर बना किसके होता है। साइटोस्केलेटन आप पढ़े होंगे, तो स्पिंडल फाइबर बना किससे होता है, तो वो बना होता है माइक्रोट्यूबुलिन से। स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है, माइक्रोट्यूबुलिन से, ना कि एक्टिन से। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि वो उनको लगता है कि जैसे देखिए क्या लगा, ये एक्टिन पे है, एक्टिन का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा तो स्पिंडल फाइबर में मान लीजिए एक्टिन अगर पाया जाता है तो सिंपल बात है वो क्या करेगा, सेल इलांगेशन ड्यूरिंग एनाफेज में काम हेल्प कर सकता है, या स्पिंडल का क्या करता है, स्पिंडल कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए स्पिंडल फाइबर किससे बना होता है आपका, माइक्रोट्यूबुलिन से बना होता है, ठीक। और ट्यूबुलिन किसके बना, माइक्रोट्यूबुलिन किससे, ट्यूबुल्स किससे बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, यानी एक्टिन का कोई रोल ही नहीं आ रहा है इसमें। अब एक्टिन प्रेजेंट कहाँ होता है, देखिए सिंपल बात है, जब डिवीजन होता है सेल का, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ठीक, तो एक तो दो सेल होते हैं, पहली बात, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि आपका क्लीवेज फॉर्मेशन हो जाता है, बीच में क्लीवेज फंसा होता है, देखिए कैसे वो बताना भी कैसे होता है। और प्लांट सेल में क्या होता है, आपका सेल प्लेट बनता है और सेल वॉल सिंथेसिस होते हैं और दो अलग अलग साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाते हैं। अब एनिमल में आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एनिमल का ही चर्चा किया हुआ है, एनिमल का, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन के हिसाब से आपको एनिमल पे ही डिस्कशन करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, साइटोस्केलेटन दो होते हैं, पूरे सेल में फैले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो साइटोक्लास्टिन बी है, एक इनका क्या होता है, पोलैरिटी बनता है, आपका एक्टिन प्रोटीन का पोलैरिटी बनता है नेगेटिव पॉजिटिव का, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, आप वो इसको बुक से रिफर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो पोलैरिटी बनता है, और क्या होता है, एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अलग अपने अपने पोलैरिटी की ओर कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, तो उनके क्या होता है, उनके बीच में क्लीवेज बनता है, ओके। लेकिन अगर आप साइटोक्लास्टिन बी बना दिए, ठीक है, साइटोक्लास्टिन बी इंड्यूस करा दिए, तो क्या होता है, पोलैरिटी एक्टिन की क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर वो पोलैरिटी खत्म हो गई तो क्या हो जाएगा, क्लीवेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो एक दूसरे को पोलैरिटी पे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका क्या होगा, अब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लीवेज होगा। स्पिंडल अटैचमेंट में तो कोई रोल ही नहीं, स्पिंडल का कोई, तो वहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, बता दिए, डीएनए सिंथेसिस का कोई मतलब ही नहीं है, सेल इलांगेशन ड्यूरिंग एनाफेज ये भी नहीं, ओके ठीक। अब आ जाइए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सिंपल कॉन्टेनिंग फ्रेगमेंट्स ए बी सी डी विथ मालिकुलर वेट दे दिया हुआ है हमको, ए प्लस बी बराबर सी। ए प्लस बी बराबर सी इसका मतलब क्या हुआ, सी बड़ा है ए और बी से, दोनों से। दूसरी बात, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए भी बड़ा है बी से, ए भी हो गया क्लियर इससे। उसके बाद डी इज ग्रेटर देन सी, तो यानी ये आपका आ गया मालिकुलर वेट का अरेंजमेंट। और उसके बाद क्या दिया हुआ, वह सब्जेक्टेड किया गया एग्रोथ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, ठीक है। व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ बैंड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। पहली बात देखिए, एनोड और कैथोड को आप जानिए। एनोड आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, देखिए अब इसको इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज से मत लीजिएगा। अगर कोई भी आप बैटरी रहते हैं, हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, बाहर से बैटरी से प्रोवाइड करते हैं, कोई जो नॉन, हम लोग क्या होता है, नॉन फिजिबल रिएक्शन होता है, उसको हम फिजिबल बनाते हैं किससे, कोई इलेक्ट्रिक सोर्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ही बनाते हैं आयंस का यूज़ करके, ठीक है। तो हमेशा अधिकतम हम लोग यूज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। जो चार्जेबल बैटरी होती हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती हैं, सिंपल। तो एनोड उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। और इसका उल्टा होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, गलती कर देते हैं, एनोड कैथोड में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बताएं कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एनोड पॉजिटिव है, सिंपल बात है। डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो किधर जाएगा, हम लोग नेगेटिव साइड लोड कर देते हैं, कैथोड साइड, और वो एनोड की तरफ भागता है। भाई जो जितना पतला होगा उतना तेज भागेगा, जो मोटा होगा वो भाई धीरे धीरे जाएगा, सिंपल बात है। सबसे पहले कौन पहुंचेगा, बी पहुंचेगा, फिर ए, फिर सी, फिर डी, तो डी सबसे ज़्यादा हैवी है, यानी डी मॉलिक्यूलर वेट इज हाईएस्ट,
It means it will be the less mobile, so it will near cathode. Okay, so we have now match the options. Anode to cathode we move BACD. Okay, so which option is matching? BACD, option A. So 19th A. Now coming to question number 20. Lack of permeability to water is very rare among the biological membrane, but it's critical to the functioning of which of the following फंक्शन और रीजन अपने को। ये तो कम सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्लास आप लोग 6, 7, 8 जहाँ भी नेफ्रॉन का जिक्र है वहाँ तो जरूर पढ़ते होंगे कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल होता है, तो एक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर हमारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस पर। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कहीं भी जरूर पाए जाते होंगे ऐसा क्वेश्चन। आप असेंडिंग गलती बना दी, डिसेंडिंग हो गया और एसेंडिंग हो गया। जो डिसेंडिंग होता है वो वाटर परमेबल होता है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है Na प्लस क्या होता है इम्परमेबल होता है। लेकिन इसका उल्टा होता है आपका एसेंडिंग लिम्ब में। एसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है वाटर इम्परमेबल होता है और Na प्लस का परमेबिलिटी इसके पास होती है। ठीक है, सिंपल याद कर सकते हैं। पानी कहाँ से फ्लो करना चाहेगा? ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो उसको फ्लो करने दीजिए, परमिएबल बना दीजिए उसको, सिंपल बात है। यानी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल को आप परमिएबल बना दीजिए, सिंपल। लेकिन इट्स क्रिटिकल टू फंक्शनिंग ऑफ द रीजन, किसमें? यानी वाटर इम्परमिएबल है, सिंपल बात है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनल में। ठीक, सिंपल फैक्ट बेस्ड था। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं अधिकतम हम बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप जितना ही हाई कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक, आपको लगा जरूर, ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं बेसिक से ही हमको क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए। कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए एडवांस्ड, क्योंकि वही काम आएंगे। जो IQV का पार्ट 2 है वहाँ पे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। लेकिन किसी क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए बेसिक से ही, पहले ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट उस किसी क्वेश्चन में मत लगाया करिए, नहीं तो आपको फालतू में आपको मालूम चलेगा क्वेश्चन इतना आसान था, हम फालतू में इतना टाइम बर्बाद किया। ठीक, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। द फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ लाइकोपिन। ठीक, contain 92% वाटर बाई वेट, pH ऑफ इस पर वेरी बिटवीन 5 to 7 फ्रूट लगेगी। अब देखिए एक तो दे दिया लाइकोपिन। लाइकोपिन प्रेजेंट होता है लगभग सब में, ठीक है, कुछ अमाउंट डिफर करता है, इससे तो कोई ऑप्शन आप जल्दी इलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाइए कंटेंट 92% वाटर। अब इससे एक ऑप्शन तो आप आसानी से इलिमिनेट कर देंगे, एप्पल। ये तो होने वाला नहीं है, 92% वाटर तो होता नहीं है। वाटर मेलन हो सकता है, टोमेटो भी लगभग 90% का वाटर कंटेंट करता है, लाइम भी लगभग कंटेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए जो दिया हुआ है इसमें 5 to 7 pH है इसका। अब टोमेटो का pH, टोमेटो में एसिड होता है, ठीक है, वाटरमेलन में भी एसिड होता है, लेकिन देखिए टोमेटो का जो pH रेंज होता है वो लगभग 4 to 3 या 4 to 5 होता है। ये नॉर्मल बात है, एसिडिक ज़्यादा होता है टोमेटो, ठीक। और आप वाटरमेलन खाते होंगे, मीठा लगता होगा, ठीक है, लगभग यानी लगभग न्यूट्रल होता है वाटरमेलन, और ये 5 to 7 pH के रेंज में आएगा। और जो लाइम होगा ये भी pH कम इसका होगा। तो एक ही ऑप्शन है डी, वाटरमेलन, सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, अब आ जाइए। हाँ एक क्वेश्चन, सिंगल्स बीचेस हैव लो एनिमल डाइवर्सिटी मिलने भी कहा जाता है। देखिए जो बीच के किनारे डाइवर्सिटी होती है वो कम होती है, क्यों होती है? सिंपल बात है, एक वेरी हाई वेव इफेक्ट, ये भी सही है। हाई सैलिनिटी नहीं, उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि वाटर क्या होता है यहाँ से लैंड एरिया से कनेक्टेड होता है, तो सैलिनिटी यहाँ पे कम होती है इसके कंपेरिजन में, ये ऑप्शन सही नहीं है। अनस्टेबल सबसिस्टम, ये भी हो सकता है, ठीक। स्टीप स्लोप, इससे कोई मैटर नहीं करता, इसलिए स्टीप अगर स्लोप है तो क्या जो माउंटेन होते हैं वो भी तो स्टीप है, तो वहाँ पे डाइवर्सिटी क्या क्या होगा? नहीं, तो स्टीप स्लोप कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, और इतना भी ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं होते हैं बीचेस के किनारे, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब देखिए दो फैक्टर हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, एक वेरी हाई वेव इफेक्ट और एक अनस्टेबल सबस्ट्रेटम। अब एक ध्यान दीजिए कौन ज़्यादा मैटर फैक्टर है? वेरी हाई वेव इफेक्ट की वजह से ही तो क्या है आपका अनस्टेबल सबस्ट्रेटम है। ध्यान दीजिए वेरी हाई वेव इफेक्ट कई फैक्टर को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो वो अनस्टेबल सबस्ट्रेटम बना दे रहा है, उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है वेरी हाई इफेक्ट, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्टेबल नहीं रह रही हैं। वो न्यूट्रिएंट्स एक बार मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म गया, देखा अच्छा खासा यहाँ पे हमारे इस एरिया में न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन क्या हुआ वेव आया और इस न्यूट्रिएंट्स को दहा ले गया, उसके बाद वो दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स पा गया, अब वो फिर से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करेगा, वो सूटेबल नहीं करेगा,
ठीक है, यानी स्ट्रेटम उसका क्या है, अने फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, वो किसकी वजह से है, वेरी हाई वेव इफेक्ट्स की वजह से। यानी कहीं ना कहीं सी फैक्टर एक आपका छोटा सा फैक्टर है ए के कंपेरिजन में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए। In flowering plants, self-pollination is often prevented by self-incompatibility. It is controlled by the multiple alleles, assuming that there is three alleles, S1, S2, S S3 for this, and that self-incompatibility occurs if the pollen and tissue of stigma, style, and allele in common. What proportion of allele produced by S1 and S2 plant would germinate the plant with genotype? Self-incompatibility आप जानते होंगे। अगर हम लोग को देखिए, पॉपुलेशन हमेशा हेट्रोजाइगस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। क्यों देती है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होता है रेजिस्टेंस करने का, और होमोजाइगस में क्या होता है कि उनके पास उतनी रेजिस्टेंस नहीं होती है, सिंपल बात है। तो नेचर ऐसा सेलेक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोजाइगस का चांस बने। और अगर इनकम सेल्फ ही अगर मतलब एक ही पॉपुलेशन बार बार अपने में इन्फ्यूजन होता रहेगा, तो क्या होगा, आपका एक तरह का कोई हाइब्रिड नहीं आएगा जिससे वो कोई पॉपुलेशन में नया रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो नेचर चाहता है हमेशा क्या हो, हेट्रोजाइगोसिटी हो। ठीक, इसलिए क्या होता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी सेम स्पीसीज के फ्लावर या सेम स्पीसीज सेम प्लांट के फ्लावर या मतलब काफ़ी रिलेटेड फ्लावर एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे में उनका वो क्या होता है फ्यूजन ना हो या जाइगोट ना बने, ये चाहते हैं। ठीक, इसलिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, अगर स्टिग्मा पे कोई पॉलन ग्रेन आ गया सेम मतलब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स का, ठीक है, दो फ्लावर, तो उनको क्या करता है वो पॉलन ट्यूब्स का ग्रो ही नहीं होने देता। केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ग्रो ही नहीं होने देते आपको स्टिग्मा पॉलन ट्यूब का। ठीक है, वही बात जिक्र है यहाँ पे। उसका हमसे पूछा है कि अगर अगर दिया हुआ है कि S1 S2 जो प्लांट है ये कितने तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, सिंपल बात है, एक S1 कर सकता है, एक S2, दो टाइप की स्पीसीज। अच्छा, इनका जीनोटाइप क्या है, S2 और S3 ओवम का। अच्छा, कह रहा है कि अगर एक भी कॉमन हुआ तो अगर S1 जाएगा तो ये जर्मिनेट करने देगा, S2 जाएगा तो जर्मिनेट नहीं करने देगा। यानी दो में से एक जो है, एक जो आपका पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाएगा, और एक जो पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। S1 वाला अगर जर्मिनेट कर रहा है तो कितना परसेंट चांस है उसका जर्मिनेशन का, 50%। सिंपल बात है, दो में से एक कर रहा है 50%, इतना तो कॉमन बात है। ठीक, वो आपको समझ आया, नहीं समझ आया ध्यान से सुनिए फिर से, हो सकता है। देखिए S1 और S2 हैं, उन दो गैमीट प्रोड्यूस करेगा S1 S2 प्लांट। ठीक, और S1 S2 में से केवल एक ही ऐसा है S1 ही कर पाएगा, उसको कंपेटेबल उसके लिए होगा। इन S2 तो इनकम्पेटेबल हो जाएगा उसके लिए। ठीक, तो S2 तो ग्रो करेगा नहीं, तो कितने चांस बने, वन आउट टोटल कितने, वन एक उसमें से किया, टोटल कितने पॉलिन ग्रेन थे, दो, परसेंटेज निकाल लीजिए 50, सिंपल बात है। उसके बाद the accompanying diagram represent a cross section of leaf blade of a grass. The anatomical feature suggest it to be। देखिए, हम इसमें सिर्फ आपको एक फीचर बताएंगे जिससे आप डायरेक्ट टेकल कर लेंगे क्वेश्चन। सिंपल बात है, जीरो फाइट क्या होते हैं, जो आपका रेगिस्तानी इलाके में होते हैं, डिजर्ट एरिया में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफाइट वाटर में होते हैं। ठीक, हाइग्रोफाइट प्रेशर एरिया में होते हैं। मीजोफाइट जिनको मीडिएट अमाउंट में वाटर चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहने के लिए, ज़्यादा बहुत कम। ठीक है, अब देखिए एक फीचर है, आप देखिए थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल सिंपल आपको लोअर एपिडर्मिस और स्टोमेटा एब्सेंट। स्टोमेटा एब्सेंट कहाँ होगा, जहाँ पे इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, यानी वो वाटर लॉस को कंट्रोल करने का ये जो ऑप्शन है, देखिए ये क्या है, वाटर लॉस को कंट्रोल करने का एक सिंपल ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, वाटर लॉस को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म, थिक क्यूटिकल रहेगा यानी वाटर लॉस कम होगा। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अगर ऊपर की लीफलेट में रहेगा तो क्या होगा, वाटर लॉस का ज़्यादा चांस है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा। अगर लोअर लीफलेट में होगा तो क्या होगा, लोअर लीफलेट में होगा तो वाटर लॉस का कम चांस होगा। स्टोमेटा एब्सेंट ही मेन फीचर होता है किसी भी जीरो फाइट अधिकतम प्लांट का, तो ये ऑप्शन जीरो फाइट होगा। बाकी सब में तो यही है, देख लीजिए। उसके बाद मीजोफाइट में तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। हाँ, दूसरी बात, हाइड्रोफाइट में भी हो सकता है कि वो क्यूटिकल हो। ठीक है, लेकिन हाइड्रोफाइट में ध्यान दीजिए बेसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाइलम बेसल जाइलम जो फ्लोएम होते हैं
उन उतने क्या होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है, अनडेवलप्ड होता है जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी आपका जीरो फाइट ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक। होप आपको समझ में आया। आने वाले वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन को भी अप्रोच करेंगे। ओके, टिल दैट ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर स्टडी, थैंक यू।